آئے اور رحمت و نور کی بارش میں نہاتے رہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جسے چاہا اللہ بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہر کوئی نہیں آتا، جب بغیر غریب نواز کے بلائے کوئی اجمیر نہیں جاتا۔ تو یہ تو سرکار پیر پیراں میرے میرا بڑے پیر کی محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ کہاں پر بیٹھے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر بیان ہوگا۔ ادب و احترام کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، اور میری ماں اور بہنیں جو چینی گوئیاں کر رہی ہیں، بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ بالکل آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، اور سن لو کان کھول کر کے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، میں پوری دنیا کو اسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ کوئی ہاتھ یا دلی پر دیکھتا ہو۔ ہمارے ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ ہم غوث اعظم کو دیکھیں، مگر یہ تو سوچ لو کہ غوث اعظم ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بہت ادب سے بیٹھو، یہ ادب کی محفل ہے، یہ ناچ گانے کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ایک غلطی ہو گئی، ادنا سی گستاخی ہو گئی، تو تباہ و بربادی ہمارے لیے طے ہے۔ اور واقعی میں غوث اعظم نے اپنی محفل میں آنا قبول کر لیا تو ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں، یہ ایسے ویسے شخصیت کی محفل نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سورج اس وقت تک نکلتا نہیں جب تک کہ عبدالقادر جیلانی کو سلام نہ کر لے۔ ایسے ویسے مت سمجھنا، ہلکے میں مت لینا کہ ویسا معاملہ ہے۔ یہ غیروں کا معاملہ نہیں ہے، یہ سرکار روشن ضمیر کا معاملہ ہے، سرکار پیرانے پیر کا معاملہ ہے۔ جب تک آپ بیٹھے بڑے ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ گستاخی جب لوگوں نے کی تو کیا کیا منظر ہوئے، علماء سے آپ سوال کرتے رہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی محفل میں یہ سوچ کر کے بیٹھے، میرے غوث نظر عنایت بغداد سے ہو تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدى الافراق والارضین۔ الصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کے ثانی عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو آج یہ مبارک بابرکت رات نصیب فرمائی۔ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے سرکار پیر پیراں میر میرا بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہماری آپ سبھی حضرات کے حاضرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑا درد جو ہو رہا ہے اس کو تھوڑا ختم کرو، ویسٹ تھوڑا کم کر دو۔ لائق مبارکباد ہیں صاحب خانہ جنہوں نے شادی کے خوشگوار موقع پر سرکار روشن ضمیر کے محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ شادی میں برکتیں عطا فرمائے، اور سرکار روشن ضمیر کے صدقے میں جو شادی میں نیت خراب رکھتے ہیں اور حرام کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کے ارادے کو ناکام بنائے، اور اس شادی میں اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔
آنے والی آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور جب تک کہ دنیا میں رکھے ہم اور آپ کو سرکار روشن ضمیر کا غلام بنا کے رکھے۔ حضرات نقیب اہل سنت محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صاحب قبلہ، جن کے نظامت اور نقابت اور نعتیہ اشعار کو آپ سماعت کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مجھ سے بیشتر خطیب اہل سنت محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا محمد شفیق صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کے نایاب بیان کو آپ نے سماعت کیا، ساتھ ہی ساتھ خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا عبدالسمیع صاحب قبلہ، جن کے نعت و منقبت کو آپ نے سماعت کیا، ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا حامد رضا صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر انقلاب حضرت مولانا ہاشم صاحب، جن کے نعتیہ اشعار کو آپ نے سماعت کیا۔ حضرات آپ ان علماء اہل سنت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان سب کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے کچھ احباب اوسان پور سے بھی تشریف لائے، کچھ عذر کی بنیاد پر میں اوسان پور میں حاضر نہیں ہو سکا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے خالو کو اللہ تعالیٰ ہمارے خالو کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے اور ان کو کروڑ کروڑ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ حضرات اور محب گرامی وقار استاد الاساتذہ فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب قبلہ، جو ابھی بیمار ہیں، جن کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہوئی، میرے رب ہم اس لائق نہیں کہ تیرے بے نیاز بارگاہ میں اپنے پاپی ہاتھ کو اٹھائیں، مگر تیری بارگاہ میں سرکار روشن ضمیر کا واسطہ اور وسیلہ پیش کر رہا ہوں۔ یا اللہ غوث پاک کے صدقے میں ان کو جلد سے جلد شفا یابی عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیاح لامکان فخر موجودہ، آمینہ بیوی کی آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے راز دلارے، قبر کی کالی کوٹھری میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں نوری چادر میں چھپانے والی داتا، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جی لگا کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ جس اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو سنیوں کا چہرہ کھل جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت سرکار کے تعلق سے سنی کے بچے بچے کے دل سے اور اس کے سینے سے، اس کے جگر سے اور اس کے زبان سے یہ آواز کل بھی آ رہی تھی اور آج بھی آ رہی ہے اور صبح قیامت تک یہ آواز آتی رہے گی۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ اور سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، پہ لاکھوں سلام۔ وہ اعلیٰ حضرت سرکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار اپنے آقا کی نعت لکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ آپ کی شان و عظمت کا تو عالم یہ ہے میرے آقا، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم قلم گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، قلم دان گیا، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو
کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، احسان گیا۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور آج لے ان کی پناہ جو مدد مانگن سے، مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ جو مدد مانگن سے، یا رسول آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے، قیامت میں گرمان گیا، گرمان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گرمان گیا، مرمان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سامان گیا، یا رسول زمان۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول زمان خوشبوئے پنجتن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول زمان خوشبوئے پنجتن، آج تشریف لانے میں کیا دیر ہے، یا رسول زمان خوشبوئے پنجتن، یا رسول زمان خوشبوئے پنجتن، آج تشریف لانے میں کیا دیر ہے، مالک کن فکا رحمت دو جہاں، سے بولے سبحان اللہ، مالک کن فکا رحمت دو جہاں، میری بغیری بنانے میں کیا دیر ہے، مالک کن فکا رحمت دو جہاں، میری بغیری بنانے میں کیا دیر ہے، رحمت دو جہاں مالک کن فکا، میری بغیری بنانے میں کیا دیر ہے، بغیری بنانے میں کیا دیر ہے، مرتضیٰ مصطفیٰ اور حسین و حسن، ہائے 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 بہت مرتضیٰ مصطفیٰ اور حسین و حسن، سب ہے جلوہ نما اور شہ ظلم رہا، سب ہے جلوہ نما اور شہ ظلم رہا، سج گئی نور کی محفل مصطفیٰ، سج گئی نور کی محفل مصطفیٰ، سج گئی نور کی محفل مصطفیٰ، پھر اسے جگمگانے میں کیا دیر ہے، جلوہ نما اور شہ ظلم رہا، سب جلوہ نما اور شہ ظلم رہا، آ گئے غوث الاعظم اور خواجہ پیا، واپس سے بولے سبحان اللہ، آ گئے غوث الاعظم اور خواجہ پیا۔ کہاں گئے دولے میاں؟ ہاں ہاں ارے آپ سوئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں سامنے آئیے، ذرا سامنے آئیے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آ گئے غوث الاعظم خواجہ پیا، آ گئے غوث الاعظم اور خواجہ پیا، اعلیٰ حضرت کو
गौसुल आजम। बेशक सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह। सभी साहब कहते हैं हाय अल्लाह क्या करें। हाँ तो क्या करेंगे, मामला ये है क्या करेंगे जी। पहले नाच लो फिर बाद में नचा लो। पहले ही मामला ये है, अल्लाह का फजल है, तौबा कर लो इस महफिल पाक की बरकत से इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से तौफीक दे। ये कह रहे हैं भैया नहीं माने, पप्पा नहीं माने, फला नहीं माने, चचा नहीं माने। मैं कहता हूँ यहाँ ये नहीं माने, अगर कयाम कब्र में मुस्तफा नहीं मानेंगे तो क्या होगा। सच है। सोचा कि मैदान कयामत में रब ताला नहीं मानेगा तो क्या होगा। आज आप एक आदमी के खुशी के लिए रसूल अल्लाह के शरीयत का खून कर रहे हो। मैदान कयामत में कौन सा चेहरा लेकर के रसूल अल्लाह की बारगाह में जाओगे, जहाँ पर अल्लाह के नबी अगर तुमसे पूछ लिए कि मेरे शरीयत का खून किया था तब नहीं सोचा था, आज आए हो। जन्नत किसी के पाप की जागीर नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत में अगर जाना है तो रसूल अल्लाह के गुलामी का पट्टा गले में डालना पड़ेगा। बेशक सुभान जंग का मामला है जी, मरना सबको है। जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होंगे। बेशक ना अपने जवानी पे इतराओ, ना अपने मालो दौलत पे इतराओ, ना अपने जिस्म पर इतराओ। मैं कहता हूँ नाज करना है तो अपने परवरदिगार पर नाज क्यों नहीं करते हैं। आज अगर अटैक का झटका आ जाए तो मिनटों में जमीन बेच करके 10 लाख का इंतजाम करके डॉक्टर को देते हैं, और जो रब माँ के पेट से लेकर के पूरी जिंदगी तुम्हें सांस लेने की ताकत देता है, उस रब को नाराज करके तुम शादी करोगे। बताओ बरकत कैसे होगी। रसूल अल्लाह को नाराज करके तुम शादी करोगे, बरकत कैसे होगी। अगर चाहते हो हमारी शादी खाना आबादी बन जाए, बर्बादी ना बने, तो रसूल अल्लाह के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लो और ऐलान कर दो, या रसूल अल्लाह ये जान भी आपके नाम पर है, ये माल भी आपके नाम पर है, ये पूरी कायनात भी आपके नाम पर है। रसूल पाक अगर जरूरत पड़ी तो जान देंगे, जरूरत पड़ी तो माल देंगे, पर आपका दिया हुआ किसी को ईमान नहीं देंगे, ईमान का सौदा नहीं करेंगे और ऐलान करते रहेंगे। तो तुझसे क्या मत लब वहाबी दूर हो, अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। भैया नहीं मान रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आज तू जवान हो गया तो क्या बाप को ठोरा देगा। जवान हो गया, जो अब जवानी देना जानता हो 1 सेकंड में छीनना भी जानता है। इतराओ मत। और सुनो, अभी जब कोरोना का मामला हुआ ना तो अच्छे को पसीना आ गया जी, और कोरोना का नाम सुन के नजारे कितने, मैं कह रहा हूँ नाम अगर डॉक्टर ने बता दिया तुम्हें कोरोना है तो लोगों को अटैक आ गया। मैं कहता हूँ डरना है तो कोरोना बीमारी से क्यों डरते हो, अब सबसे डरो। जो रब जिंदगी देने पर आता है तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें मारने पर आएगा, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए तो आला हज़रत सरकार कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं रब की बारगाह में क़यामत तक सजदा करूं तो उसका एक भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। क्यों? उसने आप जैसा नबी हमें दिया। सुभान अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, और हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को मेरा आस्था बताया। तुझे यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। हुजूर की अज़मत पर कुर्बान जाओ। और मैं दुआ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं चाहता, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा वो दोस्त नहीं है तुम्हें स्कॉर्पियो गाड़ी में लेके घूमे, तुम्हारा वो दोस्त नहीं है तुम्हें अच्छा खाना खिला दे, तुम्हारा दोस्त वो दोस्त नहीं है जो तुम्हें मालदार बना दे। दोस्त वो है जो खुद जन्नत के रास्ते पर जाए और तुम्हें भी जहन्नम के रास्ते से निकाल करके जन्नत का रास्ता बता दे, खुद नमाज पढ़े और तुम्हें भी नमाजी बना दे। सुनो, मैदान क़यामत में उठाओ कुरान पाक, और कुरान पाक उठा करके वर्मा के पास जाया करो। अल्लाह ने फरमाया ओ वजीरो, ओ बादशाहो,
میرے عزت و جاہ و جلال کی قسم، جب میں حساب لینے پر آؤں گا تو تم سے ایک ایک سانس کا حساب لوں گا۔ بے شک ہے کوئی جو تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دے سکے؟ آج اللہ نے خوشی دی ہے تو کس کا صدقہ ہے؟ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے آقا دولہا بنے ہیں تو سرکار ہی کے دولہا بننے کا صدقہ ہے۔ آج اللہ ہمیں دولہا بننے کا موقع دے رہا ہے۔ یہ بچیاں ہیں جو زندہ دفن کی جا رہی تھی، یہی وہ بچیاں ہیں جو بازاروں میں بیچی جا رہی تھی، یہی وہ بچیاں ہیں جو شہروں میں چلتے ہوئے چتا کے ساتھ جلا کر کے ختم کر دی جا رہی تھی۔ میں کہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، تمہیں تو قیامت تک رب کی بارگاہ میں جب تک زندگی رہے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا پیغمبر بھیج کر کے تمہیں بچا لیا اور تمہیں ایسی عزت دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بچوں کو مارو، حضور فرماتے ہیں جس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے ویسا ہی لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ تب آقا فرماتے ہیں لڑکی جب پیدا ہوتی ہے رب تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس کے مکان پہ نوری شامیانے کو تان دو اور اعلان کر دو اے صاحب خانہ خوش ہو جا تیرے گھر اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اور بتاؤ شادی کس کی سنت ہے؟ بولو بھائی شادی کی سنت ہے۔ اب بتاؤ تم لاکھ ڈی جے بجا لو، لاکھ نچوا لو، لاکھ خرافات کر لو، جو لاکھ گھوڑا تماشا داغ لو، اگر نکاح نہ ہو تب، نکاح نہ ہو تب تو میرے عزیز نکاح ہی تو اثر ہے۔ تو میں نکاح اگر کرنا ہے تو غیروں کی پہلے نقل مت کرو۔ نکاح اگر کرنا ہے تو جو دولہا بننا ہے دولہا بننے سے پہلے اچھا غسل کرے، غسل کرنے کے بعد میں وضو بنائے، اچھا اسلامی لباس پہنے، سر پر ٹوپی ہو، سر پر امامہ ہو اور اس کے احباب کھڑے ہو جائیں۔ عالم صاحب کو بلا لو، حافظ صاحب کو بلا لو، ہو سکے تو قرآن پاک کی تلاوت کر دیں۔ اس کے بعد میں کھڑے ہو کے کہو کعبے کے بدروں پہ تم پہ کرو پیدا کے شمس دوہا تم پہ کرو برو اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہے بھلا جانا خدا ہی چھپا۔ میں کہتا ہوں انسان تو انسان ہے، دولہے بھی فرشتے بھی آ جائیں گے، تمہیں دیکھنے فرشتے بھی آ جائیں گے۔ اور دو ہی موقع پر تو میرے سرکار دولہا بنے، ایک جب آقا معراج شریف میں گئے تب دولہا بنے، اور جب حضور مکہ میں پہلی بار دولہا بنے تو عورتیں چھپ چھپ کر کے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی دولہے بہت نیک ہے، پر یہ تو آمینہ کے لال کے دولہا بننے کا الگ انداز ہے، کیوں نہ انداز الگ ہو۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے حضور کا کوئی جواب کیسے ہو۔ لالوں میں مجھ کو آمینہ کا لال ہے پسند، لالوں میں مجھ کو آمینہ کا لال ہے پسند، لال ہے پسند، لالوں میں مجھ کو آمینہ کا لال ہے پسند، شہروں میں مجھ کو شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، مدینہ پسند ہے۔ میرے حضور جب دولہا بن کر کے چلے تو مکہ کی عورتیں کہہ رہی تھی کاش اس دولہے کی غلامی مل جائے، اس دولہے کے ساتھ نکاح ہو جائے تو دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو جائے۔ حضرت سرکار کہتے ہیں تم میرے آقا کے دولہا بننے کو جاننا چاہتے ہو، میرے سرکار کے دولہا بننے کا تو عالم یہ تھا وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، اور نئے نرالے طرب کے ساما، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ میرے سرکار دولہا بنے، میرے سرکار کے دولہا بننے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی دولہا جو میرے حضور کی طرح ہو، دنیا کے تمام دولہوں کو ایک طرف رکھ دو، آمینہ کے لال کو ایک طرف رکھ دو، تو پوری دنیا میں میرے حضور کا کوئی جواب کیسے ہو؟ سب چمک والے اجلوں میں چمک اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں
जवानों, रब ताला अगर कयामत के मैदान में अगर पकड़ करेगा तो बताओ कहाँ जाओगे? दूल्हा बने हैं चंद दिन के लिए, कहते साहब खुशी है तो क्या मालूम किसी का मर्डर कर दोगे? खुशी है तो क्या मालूम हम शराब पी लेंगे? सुनो ये माइक है, एक गिलास में अगर आप जमजम को पियो तो कितना बड़ा सवाब है, और उसी गिलास में अगर शराब लेके पियो तब जायज है? अरे डीजे लाते हो तो स्पीकर लगा दो, अल्लाह को बुला लो, और इनसे अगर दुश्मनी हो तो किसी और को बुला लो। आगे मत कहना कि इनके बारे में बोल के जा रहे हैं, मगर सुन लो, याद रखना मरने के बाद यही काम आते हैं। कब्र पे भी खड़े होके कहते मेरे मौला तिलावत कलाम रब्बानी करना इसका काम, बख्शना तेरा काम है। सच है। दोस्त कौन होता है जो खड़े होके कब्र पे कुरान पढ़े तुम्हारे लिए, मुसल्ले पे खड़े होकर के तुम्हारे घर में बरकत की दुआ कौन करता है? इमाम करता है। भारत की नजरों से मत देखा करो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये मेरे नायब हैं नायब, इनका अदब किया करो, एहतराम किया करो, गोया तो मोहब्बत से इनको देखेगा, गोया अपने हुजूर को देख रहा है। सुभान अल्लाह। क्या करो, इससे मोहब्बत क्या करो। और मिलने के बाद में हजरत जैसे पान हम खाते ना वहाँ पर, तो हजरत पान आप खाते होंगे तो ये मत पूछो पान खाना है, चुपके से ले जाओ जेब में रख दो, वो भी तो सोचेंगे दिखा के नहीं दिया है, अगर दिखाया है तो अपने रब को दिखाया है। सुभान अल्लाह। जुमा को आप जुमा पढ़ने जाते हो, चुपके से मुसाफा करके हाथ में कुछ दे दिया करो, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं ऐसे उनके भी बच्चे हैं। जी सच है। 24 घंटे की ड्यूटी इनकी होती है। रात में अगर 12 बजे कह दो हजरत जनाजे की नमाज पढ़नी है तो ऐसा नहीं इनकार कर देंगे, 12 बजे भी जा करके जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। 12 बजे रात का बाजा खटखटा दो, हुजूर पेट में दर्द है, दुआ कर दो, तकबीर करके कुरान पढ़ेंगे। ए लोगों, शरीर से बगावत और नफरत मत करो, बल्कि मोहब्बत से देखा करो। मैदान क़यामत में अगर तुम इनको मोहब्बत से देखोगे, आका फरमाएंगे फरिश्तों रास्ता दो मेरा गुलाम आ रहा है। फरिश्तों जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आका फरमाते मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। सुन लो कान खोल करके, हुजूर फरमाते हैं जो जिसकी नकल करता है वो उसी में से है। अब ये बताओ, ये जो काम शादी से पहले होता है, 10 लौंडे इकट्ठा हो गया और नाचना शुरू कर दिया, म्यूजिक बज रहा है, और मेरी माँ बहनें तो कम में थोड़ी है, कलसा भरेंगे, भरना भरो ना कलसा। मना किसने किया आपको कलसा भरने से? अपना हाथ लो ना, किसने मना कर दिया आपको? मौलाना करके हमारा अपना हाथ किसी का नहीं मारा जा रहा है, शरीयत लगाई जा रही है। सैयदा फातिमा से बढ़ करके दुनिया में कोई खातून नहीं है। हर कोई बेटी रसूल पाक की बेटी फातिमा की तरह हो। मेरे हुजूर के शहजादी की शादी मस्जिद नबवी शरीफ में निकाह, अल्लाह अल्लाह। और सुनो, रसूलुल्लाह की शहजादी ने क्या कहा, महर में क्या कहा उन्होंने? उम्मत के बख्शिश की जमानत चाहिए। क्या चाहिए? उम्मत के बख्शिश की जमानत। वो फातिमा तो रातों रात रो करके रब की बारगाह में, ए मेरे परवरदिगार, मेरे नाना की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मेरी माँ बहनों, सिंदूर लगा के कलसा भर के सैयदा फातिमा के अरमानों का खून मत करो। क़यामत के दिन नबी फरमाते हैं जन्नती और नबी सरदार कोई दूसरी खातून नहीं है, मेरी बेटी सैयदा खातून जन्नत। चंद दिन की हक लेना है, मैं तरीका बता के जा रहा हूँ, कसम खुदा की अमल कर लिए तो मैं कह रहा हूँ कि रहमत की बारिश भी होगी, अगर जिस नियत से अगर कोई बीमार पड़ेगा तो इंशाल्लाह सेहतयाब भी हो जाएगा। नियत बता के जा रहा हूँ, उठाओ कलसा और गैर महरम मर्दों को मत दिखाओ, दुपट्टा सर पर होना चाहिए बाकायदा, और दुपट्टा सर पर ओढ़ करके बावजू हो करके नहा करके वजू बना के घर से निकलो। और जब घर से निकलो तो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब जो सूरत याद हो पढ़ लो, उसके बाद में 10 औरतें उस तरफ हो जाएं और 10 इधर हो जाएं। इधर वाली क्या कही? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। तो दूसरी खातून बोले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। फिर कहो परसो तो नहीं देख कर अब रहमान, परसो तो नहीं देख कर अब रहमान, और बातों पर भी बरसा दे, बरसाने
बरसाने वाले अल्लाह अल्लाह। इस तरह से नाते नबी पढ़ करके जब तुम घर से निकलोगी कसम खुदा की फरिश्ते भी तुम्हें सलाम करेंगे और कहेंगे मौला तेरे महबूब की नात पढ़ती हुई जा रही है। सुभान अल्लाह। तो मैं कहता हूँ अपना हक तो वहाँ किसने किया? घर से निकलो, नल से भर लो, घर के अंदर चले जाओ। अब क्या जरूरत है आपको यहाँ से गाते हुए और वहाँ मस्जिद में जाना, जमुना बनाई तो थाली में लाई तो सोना पैदी माशाअल्लाह। इतनी बड़ी झूठ। सोने का बुंदा नसीब नहीं होता, थाली में जमुना बना रही है, सोने के थाली में माशाअल्लाह बुंदा नसीब नहीं हो रहा है, बाली नहीं मिल रही है। इतना झूठ बोलना गुनाह है, कबीरा है। बेशक बैठे सुनो तो खुदारा खुदारा ऐसे कुफरिया जुमले से तौबा करो, झूठ से परहेज करो। और आप करना है तो कलसा भरो, बना नहीं कर 10 मरतबा भरना है, ऐसे जाना पानी जितना लेके ले जाओ। और जिससे शादी होगी उसको तो थोड़ा नहीं भरना, कोई बात नहीं, काम आएगा। हाँ तभी भरवा देना से पानी, जितना पानी भरना है इतना पानी भरो। और पानी भरा ही लो, मना कौन कर रहा है? इस तरह से काम करो। मैं हाथ जोड़ करके मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ और बहनें कोई कुछ लगा है, कोई कुछ लगा है, कोई जहन्नम के हवाले हो। कसम खुदा की एक लफ्ज़ भी अगर तुम्हारे दिल में उतर गए, तुम मौत की सबक के शाले करीमी में चुन ली है। कदरे जो गिरत है लेकिन फिलहाल के एक लफ्ज़ तुम्हारे दिल के गहराई में अगर उतर गई तो इंशाअल्लाह हमारा भी बेड़ा पार और हमारा भी बेड़ा पार। बेशक सुभान। एक को बंद कर भाई, एक को बंद कर। तुम्हारा भी बेड़ा पार, हमारा भी बेड़ा पार। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ में दूल्हे मियाँ से भी और उनके भाइयों से भी, खुदारा अपनी आखिरत को खराब मत करो जी। और इस तरह से दुनिया से ये बन करके मत जाओ। मैं कहता हूँ दूल्हा कब बनेगा आदमी? एक दिन के लिए है? उसके बाद क्या होगा? जब तबाही आएगी तब, बर्बादी आएगी तब। हम लोग अगर राजस्थान में चंदा कर रहे थे और एक मकान में गए तो वहाँ से एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी खातून निकली और उसके कमर झुके हुए थे और चटा से मैंने सलाम किया। मैंने कहा हम लोग मदरसे से आए हैं, दारुल से जो भी आपसे बन सके आप दें। तो उनकी आंखों में आंसू थे और बेचारे कांपते हुए आए और जो भी पेश करना था पेश किया। तो मैंने कहा रोते तो घर में कोई और नहीं तो सुस्कियाँ भर करके और मैंने कहा रोते क्यों हो? तो सुस्कियाँ भर करके और बोले मौलाना साहब आप लोग जाएँ और अगर आप बैठे तो हम चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। प्रिय मत पूछो मैं रोता क्यों हूँ। मैं कहा नहीं चाचा बताना पड़ेगा रोते क्यों हो। तब तक क्या और पैमाना छलक गया, आंखों से आंसू जारी हो गए, दोनों रोने लगे। मैंने कहा रोती क्यों हो? का एक ही बच्चा था, बड़ी हसरतों से पाला था, हजरत बुढ़ापे में शादी हो गई, लेकर के अलग हो गया। ये पूरी खातून उठ नहीं पाती है, कैसा भी करके खाना बनाती है। बस अब मत पूछिए इसके आगे मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। बड़े अरमानों से बेटे को पाला था। मैं कहता हूँ नादानो सुन लो, क्या बात है। और तरह से माँ और बाप के सामने गुफ्तगू करने वालों, हुजूर फरमाते हैं खबरदार खबरदार माँ और बाप के सामने ऊंची आवाज में गुफ्तगू मत करो और माँ और बाप के सामने अदब से पेश आया करो। दुनिया में सब मिल जाएंगे, माँ और बाप तुम्हें नहीं मिलेंगे। औरत दूसरी मिल जाएगी, 10 शादियां कर ले, एक को तलाक दे, दूसरी लाई, तीसरी लाई, हड्डी में इंसान डॉक्टर जोड़ देगा, गुर्दा ट्रांसफर कर देगा, फेफड़ा निकाल के इधर से उधर कर देगा। पर ऐसा कोई बाजार नहीं बना जहाँ पे माँ मिलती हो। ऐसा कोई बाजार नहीं बना जहाँ पे बाप की मोहब्बत मिलती हो। माँ और बाप के मोहब्बत को देखना हो तो माँ और बाप के मोहब्बत को तुम बाजारों में नहीं पाओगे। माँ और बाप के मोहब्बत को तलाश करना है तो इनके कदमों में आना पड़ेगा, इनके आगे से मोहब्बत में आना पड़ेगा। और सुनो, आज लोग कहते हैं कि हजरत माँ और बाप वक्त से पहले बूढ़े हो गए। मैं कहता हूँ वक्त से पहले बूढ़े नहीं हुए, ये तुम्हारी फिक्र ने इनको बूढ़ा कर दिया है। ये शुगर के मरीज हैं, आप तरह तरह की बीमारी में मुब्तला हैं। अल्लाह अल्लाह, इनको कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर कितना भी दवा दे दे इनको असर नहीं होगा। डॉक्टर कितना भी इनको ला करके अच्छी क्वालिटी का दवा दे दे इनको काम नहीं करेगा। जो काम तेरी मोहब्बत करेगी, जब सुबह शाम तो बाजार से आया कर तो पहले बच्चों के पास जाने से पहले माँ और बाप के पास चला जाया कर। और जाने के बाद में बैठ करके कम से कम एक लफ्ज पूछ लिया, अब्बा क्या हाल है, क्या कुछ आप खाना चाहते हो? मैं कहता हूँ इतना सख्त दिल तुम्हारा बाप नहीं है, इतना सख्त दिल तुम्हारी माँ नहीं है कि सारा तुझसे छीन के खा लेगी और तेरे बच्चे को तड़पाती रहेगी। नहीं नहीं, तेरी माँ और तेरे माँ और बाप का दिल इतना सख्त नहीं है। एक बार माँ और बाप को मोहब्बत के साथ कुछ पेश करके तो देखो, आंखों में आंसू भी आएंगे, दिल भर जाएगा, दुआ भी निकलेगी और कहेंगे बेटा ये थोड़ा सा मैंने खाया। ये माँ और बाप है, ये माँ और बाप का दिल है। आज इनके इज्जत गार्डन में बैठा है, आप खुद ही कर रहे हैं। डीजे आप बजाएंगे, बदनाम कौन होगा? आपका बाप होगा।
नाचेंगे आप, बदनाम कौन होगा आपका? आप तो बम्बई चले जाओगे, पूरा लोग ताना किसको देंगे, अरे ये साहब देखो ये जनाब जा रहे हैं, बहुत बड़े अपने आप को नेक समझते हैं, हमारी हारी समझते हैं, ये देखो इनके यहाँ डीजे बजा था, इनके यहाँ नाचने वाले आए थे, इनके यहाँ ये हुआ था। मैं कहता हूँ कौन ऐसा बेटा होगा जो भरे बाजार में अपने बाप के इज्जत और आबरू और मानो मर्यादा पर हमला होता हुआ देख सकता है? मैं कहता हूँ नहीं देख सकते हो तो खुदा तौबा कर लो, ऐसी हरकतें मत करो, बल्कि ऐसा काम करो ताकि बाजार में, भरे दरबार में, भरे मजमे में भी लोग कहें ये वो इंसान जा रहा है जिसके बच्चे के शादी के मौके पर लोग नाते नबी पढ़ रहे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे थे, शरीयत के दायरे में इसके बेटे की शादी हुई है। बेशक सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अब्बाब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जमाना कुछ नहीं कर पाएगा, मरना तो सबको है ना जी। कब्र में जाओगे फिर क्या होगा? जान बूझ के गुनाह करना और एक अनजाने में गुनाह करना, और बार बार ये खुल्ला और जिस गुनाह में कई लोग मुब्तला हो जाएं। आप लाओगे, आपका पड़ोसी नाचेगा, गुनाह किस पे जाएगा? आप पे जाएगा जी। इसलिए आपने गुनाह की दावत दी है, तो खुदारा इससे तौबा करें। और तौबा करने के बाद मेरी माँ बहनें भी सुन ले, अगर कलसा भरना है तो नल से भर लेना, खुदारा मत जाना। जो औरतें बन समर करके बाजारों में जाती हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रब ताला की उन पे लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है। नबी फरमाते हैं अगर दिखाना ही है तो अपने शौहर को दिखा, गैर महरम को मत दिखा। आप अपने बाजार में शादी के मौके पर कम से कम इतना तो कर ले, खुले बाजार में मत घूमे और यहाँ से सच बच करके गाते हुए रसूलुल्लाह के दीन के शरीयत का खून करते हुए मत जाएं, बल्कि अपने आप को संभालें। और जो हमारी माँ बहनें समझदार हैं वो बच्चियों को डांटें, और यहाँ जो करना है तुम करो। मतलब क्या है? यहाँ कुरान पढ़ना है तो कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ना है तो दुरूद पढ़ो, पानी भरना है तो पानी भरो, और अदब के दायरे में, शरीयत के दायरे में दुल्हन को दुल्हन बनाओ। और जब वो दुल्हन बनेगी तुम नाते नबी पढ़ोगी, वो दुल्हन बनेगी तुम दुरूद पाक पढ़ोगी, तो इंशाअल्लाह ऐसी शादी बर्बादी में तब्दील नहीं होगी, बल्कि ऐसी शादी खाना आबादी में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन। आज दूसरे लोग देखते हैं ना, दूसरे लोग तो बहुत बात देते हैं, गैर लोग कहते हैं साहब ये तो आप में हराम है, तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? मुसलमान है कहाँ? गैर भी कहने लगे मुसलमान है कहाँ? गैर भी कहने लगे मेरे अजीज मुसलमान है कहाँ? ए लोगों, अगर आज भी चाहते हो जमाना तुम्हें सलाम करे, आज भी चाहते हो तुम्हारी इज्जत तुम्हें वापस आ जाए, तो याद रखो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी बन करके रहो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि रसूलुल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह उसके रसूल को खुश करने के लिए काम करो। और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही। करो तो सुनना चाहते हैं तो दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूलुल्लाह। और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, एहसान गया। जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुँचे, और तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, सामान गया। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से हसान बोले, फदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतले ताबान बोले, उनुक का रसकी का गान बोले, गुलाम मौत ये ईमान बोले, वह हसनो मिन करम तरक्कत व आईनी व अजमलो मिन करम तरदिन निसाओ, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्li आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। वली वली है, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं, वली की बात जो न माने वो बदबख्त है, वली दहन में खुदा का कलाम रखते हैं, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, और निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कर जाती हैं जंजीरें। हज़रात
आज का ये दिमुशान इजलास इसको निस्बत है सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिसका दीवाना हमारे सुन्नियों का बच्चा बच्चा, हमारे सुन्नियों के घर का हर अफराद था, कल भी था, आज भी है और सुबह क़यामत तक सुन्नी का बच्चा बच्चा। जब जब 11वीं शरीफ का चांद नजर आता है, यानी ये रबीउल गौस का जब चांद देखता है तो मचल जाता है, मेरे गौस का महीना आ गया, सरकार रोशन ज़मीर का महीना आ गया, सरकार पीराने पीर का महीना आ गया। रात आज आपसे पूछा जाए कि ये बता दो सरकार गौसे आजम का रौज़ा कहाँ है, तो आप कहोगे मौलाना सरकार गौसे आजम का रौज़ा तो बगदाद शरीफ में है। अल्लाह अल्लाह, तारीख के झरोखे में झांक करके देखो, ये बगदाद पहले कोई शहर नहीं था, पहले कोई आबादी नहीं थी। बाग का माना बाग होता है और दाग का माना इंसाफ करना। पहले नौशेरवा बादशाह वहाँ पर बैठ करके इंसाफ करता था, गरीबों के फरियाद को सुना करता था। आगे चल करके ये शहर आबाद हुआ जिसका नाम बगदाद पड़ गया। अल्लाह अल्लाह, उसी के थोड़ी दूर पर एक कस्बा है जिसका नाम कस्बा गीलान है। आओ आओ जरा देखो, अभी सरकार रोशन ज़मीर इस दुनिया में नहीं आए हैं, सरकार पीराने पीर की पैदाइश नहीं हुई है, मगर उसी कस्बा गीलान में जहाँ पर रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में लोग सो जाते हैं, ऐसे माहौल में एक नौजवान उठता है, उठने के बाद में वजू करता है, वजू करने के बाद अब ताला की इबादत करता है, पूरी रात सजदे पे सजदा करता है, अपने परवरदिगार को मनाता है। सुबह का जब सफेदा नमूदार होता है, नौजवान रोजा रख करके अपने परवरदिगार को मनाता हुआ अपने सफर को आगे बढ़ाता है। रात नौजवान चला जा रहा है, चलते चलते रोजे से है। अल्लाह अल्लाह, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि ज़हन व फिक्र में जो बात डालना चाहता हूँ इस पर आप गौर करना। नौजवान अभी चंद ही कदम चला था तब तक ये नमाज ज़ोहर का वक्त हुआ। नौजवान ने अपने सफर को रोक दिया, रोकने के बाद दरिया दजला के पानी से वजू किया और वजू करने के बाद में नमाज ज़ोहर अदा की। अल्लाह अल्लाह, क्या सजदा है नौजवान का। नियत बांधता, अल्लाहु अकबर, नियत बांधा, अल्लाह अल्लाह, सलाम हो ऐसे नौजवान पर। रब ताला की बारगाह में सजदा किया, सलाम फेरता है और फेरने के बाद में नौजवान फिर अपने सफर को आगे बढ़ाता है। अभी चंद ही कदम चला था तब तक के नौजवान ने देखा कि नमाज असर का वक्त हो गया। नौजवान नमाज असर अदा करता है, सोचता है आओ आगे चलो, तब तक के कहता है नहीं नहीं, अब हमें यही रुक जाना चाहिए। क्यों? मैं रोजे से हूँ और इफ्तारी के टाइम का इंतजार करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, इंतजार करता रहा, नौजवान मुंतजिर रहा, कभी सूरज के किरणों को देखता, कभी अपने पास खाने के सामान को देखता। नौजवान के गुदड़ी में खाने का कोई चीज नहीं है। नौजवान ने समझ लिया अब मेरे पास कोई नहीं है इफ्तारी का, मेरे पास खाने का कोई सामान नहीं और इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। नौजवान आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद में दरिया के पानी को अपने हाथ के हथेली पर लिया और लेने के बाद में दुआ इफ्तार पढ़ करके जैसे होंठ के करीब लगाना चाहता था तब तक के नौजवान को दरिया के सतह पर एक फल बहता हुआ नजर आया। नौजवान ने कहा लगता है मेरे परवरदिगार ने मेरे लिए गैब से इफ्तारी का इंतजाम कर दिया है। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद में उस फल को लिया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, दुआ इफ्तार पड़ता है और जैसे फल को खाया, अभी हलक के अंदर फल के चंद लुक़मे गए थे, नौजवान के गैरत ने छोड़ करके कहा नादान, दूसरे की अमानत को खा लिया, क़यामत के दिन अल्लाह ने अगर तुझसे पूछ लिया तो बता रब ताला की बारगाह में तू क्या जवाब देगा। नौजवान की आंखों में आंसू है, नौजवान रोता रहा, नमाज मगरिब अदा करता है, इशा का वक्त हो गया, पूरी रात आंखों से आंसू बहते रहे। नौजवान ने सोचा जब सुबह होगी चल करके इसके मालिक को तलाश करके माफी मांग ली जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जब सुबह का सफेदा फैला नौजवान दरिया के किनारे किनारे चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, अभी चंद ही कदम चला था तब तक के नौजवान को दरिया के सतह के करीब, दरिया के किनारे कई दरख्त नजर आए और देखा एक खूबसूरत बाग है। अल्लाह अल्लाह, उस बाग में जो दरख्त ऐसे है जिसकी टहनियां दरिया की तरफ लटक रही है। नौजवान समझ गया हो ना हो इसी बाग का वो फल है जो दरिया में बह करके जा रहा था। नौजवान एक बागबान से मुलाकात हुई जो बागों की सिंचाई कर रहा था। क्या ये बताओ इस बाग का मालिक कहाँ मिलेगा? कहा चले जाओ सामने जो महल है उस महल के सामने एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में इस बाग का शेख बैठा है। अल्लाह अल्लाह, नौजवान आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद जब कुटी के करीब पहुंचा तो नौजवान ने क्या देखा, एक शेख है जिनका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है। चेहरा क्यों ना चमके, ये आले रसूल है। चेहरा क्यों ना चमके, ये आले नबी है। चेहरा क्यों ना चमके, ये औलादे अली है। तभी तो आला हज़रत सरकार कहते हैं तुम आले नबी को जानना चाहते हो, औलादे अली को जानना चाहते हो, और आले नबी की शान का तो आलम यह है
मुंतजिर रहा। शेख का सर सजदे में है, नौजवान इंतजार करता रहा शेख सर को सजदे से उठाएं। जैसे शेख ने सलाम फेरा, नौजवान ने बादब सलाम अर्ज किया। शेख ने नौजवान को देखा, जवाब दिया। सर से पांव तक शेख को देखा है। शेख को नौजवान ने देखा, नौजवान ने शेख को देखा। एक वली ने वली को पहचान लिया। कहा, ए नौजवान कहो कैसे आना हुआ? कहा, या शेख आपके बाप के दरख्त का एक फल दरिया में बह के जा रहा था। वैसे तो मैंने मुबाह समझ करके खाया था, मगर कल्ब और रूह की सफाई के लिए आपकी बारगाह में आया हूँ। सरकार मेरे खताओं को माफ कर दें। कल मैदान कयामत में अगर अब ताला ने मुझसे पूछा तो बताओ अल्लाह की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा? शेख ने कहा, बेटा अगर कल्ब और रूह की सफाई के लिए आए हो तो ए नौजवान फल खा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। कहा, शेख माफी कैसे मिलेगी? कहा, ए नौजवान सुनो, तुम्हें हमारे बाप की बागबानी करनी पड़ेगी। 6 महीना या 1 साल तक नौजवान ने शेख के बाप की बागबानी की। जब मुद्दत पूरी हो गई, एक दिन शेख की बारगाह में हाजिर हुआ, चल करके माफी मांग ली जाए। मगर शेख की बारगाह में जब नौजवान पहुंचा तो हिम्मत और जुर्रत न हुई। शेख ने फरमाया, बेटा कहो कैसे आना हुआ? कहा, या शेख अब मुद्दत पूरी हो गई, अब मेरे खताओं को माफ किया जाए। नौजवान के चेहरे को शेख ने देखा। कहा, बेटा तुमने तो एक शर्त पूरी कर दी है, अगर चाहते हो कि दूसरी शर्त चाहते हो कि तुम्हारी खता माफ कर दी जाए? हाँ शेख हमारी खता माफ कर दो। कहा, बेटा सुनो, हमारी एक शर्त और है, उसे पूरा कर दो। कहा, या शेख अब कौन सी शर्त है? कहा, सुनो, मेरे पास एक लड़की है जो दोनों आंखों की अंधी है, जुबान की गूंगी है, दोनों कान की बहरी है, दोनों हाथ की लूली है, दोनों पैर की लंगड़ी है। अल्लाह अल्लाह उससे तुम निकाह कर लो, तुम्हारी खता माफ कर दी जाएगी। नौजवान थोड़ी देर सोचता रहा। अगर आज का नौजवान होता तो कहता, भली सारी उम्र मैं ऐसा बैठा रहूं, मगर मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो देख ना सके, जो सुन ना सके, जो चल ना सके। मगर वह नौजवान तुम्हारे हिम्मत और सदाकत को सलाम। नौजवान ने कहा, या शेख मेरी खता माफ की जाए, मुझे ये शर्त मंजूर है। चुनांचे शेख ने इंतजाम और एहतमाम किया, निकाह खानी की महफिल हो गई। फरमाया, बेटा जो सामने महल नजर आ रहा है, इस महल में मेरी बच्ची के अलावा कोई दूसरी औरत नहीं रहती है। अल्लाह अल्लाह। और ए बेटा आज से सारे बाग के तुम मालिक हो गए। नौजवान है, शाम का वक्त है, दरवाजे पर दस्तक दिया। क्या देखा? एक हसीनो जमील बीबी ने अपने शौहर का इस्तकबाल किया। खातून दरवाजा खोलती है, नौजवान की निगाहें झुक जाती हैं कि शेख ने तो कहा था तुम्हारी बीबी ऐसी है जो आंखों की अंधी है, तुम्हारी बीबी ऐसी है जो दोनों कान की बहरी है, तुम्हारा निकाह उस लड़की के साथ हुआ है जो चल नहीं सकती है। मगर मामला उल्टा नजर आ रहा है। चुनांचे नौजवान नियत बांध करके पूरी रात इबादत करता रहा, खातून भी इबादत करती रही। कहा, जब सुबह का सफेदा फैलेगा चल करके शेख की बारगाह में शादी का मतलब पूछ लिया जाएगा। जब सुबह का सफेदा फैला और जैसे मस्जिद के मीनार से अज़ान की आवाज आई, अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने नमाज फजर अदा की। शेख की बारगाह में पहुंचे तो शेख देखते ही मुस्कुराने लगे। कहा, बेटा आ गए? कहा, सरकार आ गया। कहा, नौजवान कहो कैसे आना हुआ? कहा, या शेख शादी का मतलब हमारे समझ में नहीं आया। कहा, नौजवान सुन, मैंने तुम्हारे सुबह को देखा है, मैंने तुम्हारे शाम को देखा है, मैंने तुम्हारे गुफ्तार रफ्तार को देखा है, मैंने तुम्हारे तकवा और तहारत को देखा है। ये नौजवान सुन, मैंने तो कहा था मेरी बच्ची दोनों पैर की लंगड़ी है, कभी भी शरीयत के खिलाफ एक कदम आगे नहीं बढ़ाई है। मैंने तो कहा था मेरी बच्ची दोनों कान की बहरी है, कभी गैर महरम मर्द की आवाज मेरी बेटी के कान में नहीं पड़े हैं। मैंने तो कहा था मेरी बच्ची दोनों हाथ की लूली है, कभी शरीयत के खिलाफ अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाई है। सुन, वो मेरी बच्ची है, उसका नाम फातिमा उम्मुल खैर है, इस नौजवान का नाम अबू सालेह है, उस शेख का नाम अब्दुल्ला सोलई है। इन तीनों के आखिर में जो फूल खिला है उसी का नाम मेरे पीर है, उसी का नाम दस्तगीर है, उसी का नाम उसी का नाम पीर है, उसी का नाम मीर मीरा है, उसी का नाम शेख जिलानी है, उसी का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। बेशक सुभान अल्लाह। वो सरकार गौ से पाक है, माँ ऐसी थी, बाप ऐसे थे, नाना ऐसे थे। इन तीनों के आंगन में जो फूल खिला उसी को गौसे पाक सरकार कहते हैं, उसी को बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं। नब्दी ज़हन और फिक्र रखने वाले ये सवाल करते हैं कि मौलाना गौसे आदम सरकार क्या क्या कर सकते हैं, तो कहना गौसे आदम सरकार वो कर सकते हैं जो तू सोच भी नहीं सकता। सरकार रोशन ज़मीन जब पैदा हुए तो 29 शाबान मौसम की तारीख है। ये भी वर्मा से आपने सुना, आप सुबह से लेकर के शाम तक दूध नहीं पीते। माँ ने कह दिया कि लोगों फिक्र मत करना, शरई सबूत आ गई है और मेरे बेटे अब्दुल कादिर दूध नहीं पी रहे हैं। इसका मतलब 29 का ही चांद हुआ है, वो सरकार गौसे आजम है। तभी तो आशिक कहता है रहे काम शरीयत के पाप
غوث اعظم کا بچپنا ہے، آپ چل رہے ہیں زمین پر، جی ایک دن آئے کہا امی جان میرا احسان ہے آپ کے اوپر. سرکار غوث اعظم کی ماں فرماتی بیٹا عبد القادر 9 مہینہ پیٹ میں میں نے رکھا ہے، بیٹا دودھ میں نے پلایا ہے، پرورش میں کر رہی ہوں، بیٹا تیرا احسان مجھ پر کیسے ہے؟ کہتے ہاں امی جان میرا احسان ہے آپ کے اوپر. کہا عبد القادر تیرا احسان مجھ پر کیسے ہے؟ بیٹا ذرا بتاؤ. اللہ اللہ، بچپن میں جب بچہ ماں باپ سے گفتگو کرے تو بتاؤ